Okay, so let's start. In previous class, we discussed how can we insert data to the database by using some PHP queries, and you can see the one SQL query here. Then we used a function. We used a function MySQLi query. In this, we passed a database connection handle and second the query. Right? Using these queries, using these statements, you can insert data into database. If you want to check more things here, if you want to check whether these things are empty or not and want to check that, then you have an option of doing something like this, empty function, and then you can pass, or you can do something like this, if not empty, and then assign this value to the username. Similarly, you can do with others, right? So by this, we are checking whether this value is empty or not. If this value is not empty, then we are assigning that. Otherwise, you can generate an error message and ask user to input the data, right? But we are not looking into this right now. We are just checking whether the submit button has been clicked or not. Yeah, remove this. So using this each set function, you can check whether submit button has been clicked or not. Now create one new file, and this new file name is maybe details.php, because you want to show the details on this page that we are extracting from the database. Okay, this is no problem. We will create a new file here. Here is the new file, details.php, and what I want to do with that, I can copy this whole thing, or maybe just HTML part of this, because few things are similar, like HTML head and this title body. So just copy this, remove this form. So this is the basic structure, right? User details. Whenever we are going to connect to a database, we need file which we discussed in our previous class, and that is config.php. Using this file, we are going to connect to the database, right? So if you are connected to database, only then you can perform CRUD operations. CRUD is CRUD, means create, read, update, and delete. In previous lab, we discussed about creating something on database, and now we are trying to reading that data from the database, right? And in future, we are going to uh, focus on update and delete part. So what we need for this, we need a PHP query. Let me change the permission for this file.
I am not able to save this file. So I think now I will be able to save this file. Okay. So what you have to do, just create one PHP tag. Inside this, you are going to write all the logics. And one of the logic that I'm going to write is create a command SQL. And what you want to do, you want to read some data from the database, right? So you can write something like this, select. Right now I'm saying that select star from and table name. What is our table name? Users. So write users like this. So what this command is going to do, this will extract everything from the database, whatever is inside users table. And then you have to use MySQLi query, pass connection as first argument and pass SQL as second argument. And now this is going to execute the query. Whenever this query is being executed, it will fetch the result from the database. You can give it any name. Let's suppose give it name result. It means you will get something from the database, right? Is it clear to everyone? So whenever you are extracting something from the database, you are getting result. So how will you know that there is something in the database? What is the basic condition? What should be the basic condition? जैसे आपने डेटाबेस, आपको पता नहीं है उसके अंदर कुछ है, आपने कुछ एक्सट्रैक्ट किया, आपके पास कुछ आया, तो हाउ वी आर गोइंग टू चेक कि उसके अंदर कुछ है कि नहीं है? कोई अपने अपने हिसाब से सोचो, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है या ऐसा कोई एट्रीब्यूट हो सकता है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ कुछ है इसके अंदर. इज एम्प्टी, चलो इज एम्प्टी जैसा कुछ फंक्शन, राइट? नंबर ऑफ रोज का होता है आपके पास एक एट्रीब्यूट, जिससे आप ये पता कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी होनी चाहिए, अगर कुछ है तो कुछ तो होनी चाहिए, है ना? तो वही कंडीशन हम चेक करने वाले हैं. विल चेक इफ जो भी रिजल्ट आपका आया उसमें अगर नंबर ऑफ रोज कम से कम एक है, यानी कि 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, तभी एक बोलेंगे. अगर ऐसा है तो डेटा फेच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और डेटा फेच करना कैसे स्टार्ट करेंगे हम? अब डेटा फेच करना है और हमें टेबल में भी दिखाना है, तो इसका मतलब टेबल आपके पास होनी चाहिए पहले एक, ठीक है? तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप एक काम करो कि जो चीजें ये दिख रही हैं आपको, जैसे जो भी पीएचपी वाला पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला, क्योंकि आपको पीएचपी और एचटीएमएल कंबाइन करना है अब एक साथ, ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ इफ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं पीएचपी को, क्योंकि इसके बीच में आपको टेबल लेके आनी है. टेबल जैसे मैं यहाँ से टेबल का पहले से जो बना हुआ फॉर्मेट है उसको उठा लेता हूँ. वेयर इज टेबल? ये वाली टेबल है, ठीक है? जैसे ये टेबल का फॉर्मेट उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, और इस टेबल को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. इसके बाद ऐसा ही तो कुछ चाहिए ना हमें, चेंज करनी है चीजें अभी हमें, बट कुछ ऐसा चाहिए ना हमें कि अगर यहाँ पे एक रो है मेरे पास, इस रो को मैं खत्म कर देता हूँ, दूसरी रो होता है एक हमारे पास, ये वाली रो भी वाइंड अप कर देता हूँ यहाँ से. देखो ऐसा ही कुछ चाहिए ना हमें, अगर अब नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो ऐसा कुछ हो जाए, एक टेबल बन जाए और टेबल के अंदर डायनेमिक वैल्यूज आ जाए, यही तो चाहिए, राइट? लेकिन जब पीएचपी और एचटीएमएल को आप कंबाइन करेंगे तो ये देखो पीएचपी ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ से टैग स्टार्ट हो गया था, तो इस टैग को सबसे पहले बंद कर दो आप. जब दूसरा पीएचपी आएगा तो उसको आपको स्टार्ट करके बंद करना पड़ेगा. जैसे नीचे देखो, एचटीएमएल से जस्ट पहले एक पीएचपी का टैग लगा हुआ है ना, ये वाला, और इससे पहले पीएचपी का कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको?
ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको लग रहा है कि पीएचपी वाला पार्ट था? इफ वाला तो बंद कर दिया, उसके बाद है कुछ ऐसा? कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रेसेस से पहले भी आपको पीएचपी का टैग लगाना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? पहले आप अपने स्ट्रक्चर बना लो अपने हिसाब से पूरा। पीएचपी और एचटीएमएल कंबाइन करने का तरीका क्या है? पहले अपना स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया, टेबल हमने वैसे ही बना ली। अभी यहाँ बीच बीच में भी कहीं पे पीएचपी लगेगी, कि डायनेमिक कैसे लाएंगे इनको आप? जो चीजें डायनेमिक होंगी या पीएचपी का पार्ट होगा, प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा, वो वहां पे आप पीएचपी का टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हमने काम कर लिया। अब सोचो टी बॉडी पे आ गए हम। ठीक है, टी बॉडी ऐसे ही बन जाएगी क्या? ये तो हमने एक ही रो का यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रो बननी है। तो सबसे पहला क्या हमारे पास क्या क्या था टेबल के अंदर? अगर हम लास्ट क्लास में देखें तो ये ऐड वाला पार्ट था, राइट? इसमें यूजर नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है और सिटी है, 4 चीजें हैं। यूजर नेम, कॉन्टैक्ट, तो एक्चुअली आपके पास वो 4 चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। वो कैसे लेके आएंगे आप? अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल, यानी कि यूजर नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और सिटी। ये 4 वेरिएबल कैसे हमारे पास आ जाए और इस पे अगर हम एक लूप चला लें तो हमारा काम चल जाएगा। एक लूप चला लें, जैसे आपने फॉर लूप बनाई, मान लीजिए आपने एक फॉर लूप बनाई। अब यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगा रहे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। i to n, मान लीजिए n रोज हैं, तो अगर ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें तो हमारे पास n रोज आ जाएंगी ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हम यही करना चाह रहे हैं। अब ये कैसा करेंगे हम? हमारे पास एक व्हाइल लूप का ऑप्शन है यहाँ पे। देखो जो ऊपर HTML वाला पार्ट लिखा हुआ उसको रहने दो, वो तो HTML है, वो तो आ ही जाएगा वैसे एज इट इज जैसा था। लेकिन आपको PHP क्यों यूज कर रहे हैं आप? क्योंकि आप डायनेमिक चीजें लाना चाहते हैं। बाकी भेजेगा आगे वो HTML ही। अभी जब इसको आगे देखेंगे पेज पे और उसको पेज सोर्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ HTML, PHP कभी दिखेगा नहीं आपको। वो दिखाना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए बिजनेस लॉजिक आपको किसी को आगे दिख गया तो वो तो पता चल जाएगा ना आप क्या कर रहे हैं पीछे, तो वो दिखना नहीं चाहिए यूजर को, उसका यूजर का कोई काम नहीं उसमें। तो एक लूप चलाते हैं हम। इस लूप में क्या होगा? ये लूप उस रिजल्ट से, जो अभी रिजल्ट आया हमारा ऊपर देखिए यहाँ पे, जब नंबर ऑफ रोज हमने चेक की, उससे पहले MySQL क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की थी, तो रिजल्ट नाम की कोई चीज आई थी। तो रिजल्ट में क्या पूरा का पूरा जो टेबल थी हमारी वो आ गई। अब आपका क्या काम है? उसमें से एक एक रो निकालना, उसमें से एक एक कॉलम निकालना और उनको पढ़ना, यही काम है, और उसको पेज में शो करना। ठीक है, तो रिजल्ट में आप क्या करेंगे? रिजल्ट के पास एक फंक्शन है फेच एरे नाम का। फेच एरे नाम का एक फंक्शन है इसके पास। फेच एरे नाम का फंक्शन क्या करेगा? ये फाइंड आउट, ये उसमें से एक एक लेके आएगा हर बार और पॉइंटर अपना नीचे करते जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे टेबल में मल्टीपल रोज है, पहली कॉलम का एक रो उठाया, उस रो को चाहे आपने ऐसे मान लीजिए कि रो नाम से सेव कर लो। अब ये व्हाइल लूप यहाँ से शुरू हुई तो खत्म कहाँ होनी चाहिए? कहीं रो के बाद खत्म होनी चाहिए, यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। फिर इसके लिए भी वही करना पड़ेगा आपको, PHP स्टार्ट करो और PHP को खत्म करो, वो आपने यहाँ पे खत्म किया। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बस आपको सिर्फ डायनेमिक चीजों पर फोकस करना है कि उसको कैसे लिखा जाएगा। हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? जब आपने एरे इस तरीके से लेके आए तो जो यूजर नेम लिखा है, यूजर नेम ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे कहीं वेरिएबल तो बनाया नहीं हमने ऊपर, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा रो के अंदर से। तो रो लेकिन PHP का पार्ट है, तो सबसे पहले PHP ओपन कर दो और क्लोज कर दो, क्योंकि इसके अंदर ही लिखना है जो लिखना है। इको क्या लिखना है? रो के अंदर से जो भी चीजें आप लेके आ रहे हैं, लेकिन फेच एरे लिखा है इसलिए इसका इंडेक्स 0 1 2 3 होगा, क्योंकि एरे लिखा हुआ है। अभी नेम्ड इंडेक्स नहीं आया मेरे पास, जैसे डिक्शनरी में आता वैसा नहीं आया।
तो 0 1 2 3 से काम चलेगा। और इसी चीज को मैं कॉपी कर सकता हूँ बार बार यहाँ पे नीचे भी। इसकी 0 की जगह 1 करना पड़ेगा, जगह 2 करना पड़ेगा, और सिटी की जगह 3 करना पड़ेगा। आएंगे उसी ऑर्डर में जिसमें लिखे हुए हैं। आ गया। अब जहाँ पे टेबल बनाइए, चाहे आप वहाँ पे एक बॉर्डर दे दीजिए मे बी 1 पिक्सल का, ताकि पता चल जाए टेबल बन रही है कुछ। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है इसके लिए अभी। तो चेक करते हैं, ये ऐड से हमारे डेटाबेस में कुछ ऐड हो गया था, हमने देखा था उस दिन। तो मैं एक बार यूजर्स टेबल को ओपन करके देखता हूँ, 3 रोज ऐड हैं इसमें ऑलरेडी। अब मैं ऐड की जगह मुझे क्या लिखना है, डिटेल्स डॉट php। कोई सिंटैक्स एरर है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। अनएक्सपेक्टेड आया है कुछ 26 लाइन में। ओके ठीक है, ये मैंने क्लोज नहीं किया इसे, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा एरर आ गई। ठीक है, फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं, डिटेल्स डॉट, ये नहीं है इसका नाम। config.php कह रहा है फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन दिस। ऐसा कैसे हो गया, हमने तो फाइल बनाई थी। कॉन्फ़िग के नाम से नहीं बनाई हमने क्या? तो हमने तो सही लिखा है, फिर गलती क्या हो गई? एज इट इज लिखा है जैसे पहले लिखा था। चलो ठीक है, कोई नहीं, और देखते हैं, और चीजें देखते हैं क्या बोल रहा है। फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन दिस ऑनलाइन टू, वार्निंग फेल्ड ओपनिंग दिस। एक काम करते हैं, फिर से मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं उसको एक बार, मेरे ख्याल से उसको रीड नहीं कर पा रहा है वो। वेरी से कौन, यहाँ तो दिख भी नहीं रही मुझे कॉन्फ़िग कहाँ गई। डिलीट कैसे हो सकती है? तो मैंने कहीं और बनाई क्या बाहर इसमें ऐड? अच्छा नहीं नहीं, समझ गया मैं। एक्चुअली क्या है, रुको, सही है सही है। मैंने क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज किया था। अभी देखो मुझे ना ये मूव करना पड़ेगा। हमने पीएचपी के फोल्डर के अंदर अंदर डाल दिया था ये सब कुछ, तो यहाँ मिलेगा इसे अब जो भी मिलेगा। तो डिटेल से पहले आपको लिखना है पीएचपी। ठीक है, अब कुछ और दिक्कत है उसको देखते हैं अभी, बट एटलीस्ट इतना ठीक है। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी माई एसक्यूएल रिजल्ट। ओके, तो माई एसक्यूएल रिजल्ट को ये कह रहा है कि कुछ गलत है। वो कहाँ पे लिखा मैंने ऐसा, लाइन नंबर 23 में। तो लाइन नंबर 23 को देखते हैं, फिर से ओपन करना पड़ेगा फाइल को। वो फाइल ये है, रिजल्ट फैच एरे। अच्छा ठीक है, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, ये फंक्शन होगा। अब देखो आ गया, तो सही है, इस तरीके से टेबल बन जाएगी बस। बाकी तो आपको पता ही था सारा कुछ, इसको ज्वाइन ही तो करना था, इतना ही काम था हमारा। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? ऑनलाइन कितने बच्चे बैठे हुए, टोटल कितने, 20? अच्छा 24, ओके। बच्चों किसी को कोई डाउट इसमें? अगर नहीं है तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है,
तो ये क्लियर हुआ सबको? देखो कुछ था नहीं इसमें खास। टेबल बनानी अगर आपको आती है तो आपको बस पीएचपी फिट करनी है बीच बीच में। और एक चीज जो हमने नहीं सीखी, ये वाइल रो वाला जो पार्ट था कि फेच एरे, किस तरीके से एरे फेच करना है। और एक चीज जो थी ऊपर, ये वाला पार्ट कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो कभी भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है आपको, ये रोज का नहीं है, ये तो कॉलम्स का है। रो का मतलब एक रो आई हमारे पास, उसमें कितने कॉलम है, दैट इज 0 1 2 3। तो जितना होगा उतना चलेगा। कॉलम जितने ज्यादा होंगे वो सब तो निकालने पड़ेंगे ना आपको। मान लीजिए 100 कॉलम्स हैं एक टेबल के अंदर, तो इंडेक्स तो 0 से 100 होंगे ही होंगे, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। या तो आप एक ऐसी लूप चला दो, या ऐसा कोई वेरिएबल ले लो जो कि आई लिखना होगा आपको बस, और वो अपडेट आई प्लस 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 इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा आपको हर बार, वो भी चल सकता है। तो बच्चों ये समझ में आया सबको? अब इस वाले फंक्शन में, फैच एरे वाला जो फंक्शन है, इसमें एक छोटी सी मतलब समझने वाली दिक्कत है बस। दिक्कत क्या है, आपको 0 1 2 3 लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 आपको याद भी रखना पड़ेगा डेटाबेस में क्या है। तो उससे अच्छा हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं फैच एरे की जगह। इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या लिखा हुआ है। और इसकी जगह दूसरा फंक्शन यूज करते हैं फेच एसोसिएटिव, ASSOC, इतना ही लिखना है। एंड व्हाट इज एसोसिएटिव? जो एसोसिएटिव एरे होता है हमारा, क्या डिफरेंस है एरे में एसोसिएटिव एरे में? की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो उसमें जो इंडेक्स होगा दैट विल बी सम की कौन सी, जैसे आपका हमने लिखा कॉन्टैक्ट या नेम, उसमें नंबर्ड नहीं होंगे, उसमें स्ट्रिंग्स होंगी। तो अभी एरे में आपको 0 1 2 3 का ध्यान रखना पड़ रहा था। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो वैल्यूज हैं उनको लिखो। तो वो वैल्यूज क्या है? फर्स्ट इज यूजर नेम, सेकेंड इज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट था सेकेंड, थर्ड ईमेल था मेरे ख्याल से, एंड फोर्थ वन वाज सिटी। रिजल्ट सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप, अच्छा क्या कर दिया मैंने अब 34th लाइन में, मैंने कहीं भी चेंज किया कुछ? अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ देखो, दिख रहा है आपको? एक तो ये, पर इससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए, इससे तो नहीं पड़ना चाहिए था फर्क, कर दिया मैंने ब्लॉक पूरा। अनएक्सपेक्टेड दिस, अच्छा ठीक है। क्यों बता सकता है एरर क्यों है? ये एरर है, ठीक है। ये एक्चुअली हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे बता रहा था ना मैं, ये वाइल लूप थी, नहीं ठीक है, अब नहीं होगा। अच्छा अभी भी है 34 लाइन में अनएक्सपेक्टेड दिस, ये वाला पार्ट, लेट्स रिमूव इट। अब और एरर आ गई बहुत सारी। PHP स्टार्ट होना जरूरी है, वो मैंने हटा दिया, क्यों हटाया पता नहीं, बट वो नहीं हटाना था, ये वाला पार्ट हटाना था, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आ गया, ये ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, अब ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आप इसमें छोटी चीजें बदलना चाहते हैं इधर उधर, तो कैसे बदल सकते हैं? जैसे आपको कॉन्टैक्ट पहले लेके आना है, ये देखो आईडी की जगह नेम आ गई, ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। पहला नेम होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप कुछ और लाना चाहते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की जगह आप ईमेल लेके आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे,
हेडिंग में तो ईमेल डाल देंगे पहली बात, दूसरा आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल देंगे और यहाँ पे सिटी डाल देंगे। तो नीचे भी ऐसे ही बदलना पड़ेगा आपको, यूजर नेम, फिर कॉन्टैक्ट यहाँ से उठाओ, यहाँ पे ईमेल डाल दो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दो, फिर वापस जाओ, अब चीजें बदल गई फिर से। तो बदलना आसान है। तो इस तरीके से आप डेटा रीड करके उसको टेबल की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। एक छोटी चीज आप खुद से यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब आगे क्या करना है, ये 2 रोज हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक अपडेट का कॉलम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अपडेट का कॉलम बनते ही ऐसे अपडेट का कॉलम आ गया, आगे देखिए, ठीक है। या 2 कॉलम बना सकते हैं, एक में अपडेट और एक में डिलीट, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम हर एक रो के आगे एक बटन बनाना चाहते हैं। अगर उस एक पे क्लिक करेंगे तो इट विल एडिट द फॉर्म, सेकंड पे क्लिक करेंगे इट विल डिलीट दैट रो। एडिट मतलब एक पर्टिकुलर रो को एडिट कर रहे हैं हम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो बनना ही बनना है, देखो एक कॉलम तो बनना ही बनना है, इसके अंदर ही करेंगे आप जो करेंगे। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इनपुट टाइप बटन, और बटन में आप वैल्यू दे सकते हैं एडिट या अपडेट। एडिट देते हैं वैसे, अपडेट तब जब हम वैल्यू फिल कर देंगे पूरी की पूरी, जिस फॉर्म पे जाएगा वहां पे अपडेट दे देंगे बटन। ऐसे एक दूसरा बटन दे देते हैं जो कि आपका डिलीट करने का काम करेगा, वैल्यू डिलीट, ठीक है। आप इसमें अगर नेम देना चाहते हैं या आईडी देना चाहते हैं वो बात की बात है, पर इतना देख लो पहले। तो ऐसा फॉर्म बन के आएगा आपके पास। तो अब आपके पास हर एक जगह पे क्या है, एक एडिट का और एक डिलीट का ऑप्शन है। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, एक्चुअली आप कहाँ जाएंगे, आप इसकी कॉपी करनी पड़ेगी आपको। देखो एक दूसरा ओपन कर रहा हूँ, इसकी कॉपी करनी पड़ेगी आपको फिर से, ऐड वाले फॉर्म की। और क्या करना पड़ेगा, जब एडिट पे क्लिक करेंगे आप, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, क्या क्या जरूरत होगी, यूजर नेम की जरूरत होगी। तो जैसे देखो आपने एडिट पे क्लिक किया तो एक फॉर्म खुलेगा ऐसा, ये फॉर्म ऐसा ही दिखेगा या कुछ चेंज होगा इसमें, इसमें फिल होंगी चीजें, राइट। तो इस फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल करने के लिए हमें डेटाबेस से लेके आना पड़ेगा, उस चीज को लाना पड़ेगा। और वो डेटाबेस से किस बेसिस पे लेके आएंगे हम, डेटाबेस से किस बेसिस पे लेके आएंगे, यूजर नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक यूजर नेम से भी लेके आ सकते हो आप, दूसरा आप आईडी से भी लेके आ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जो एडिट बटन होगा उसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस यूजर की बात हो रही है इस टाइम पर्टिकुलरली, है ना। यूजर की बात जब, जैसे मैं इस यूजर नेम की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की, तो एडिट बटन में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, नहीं तो उसे कैसे पता क्या डेटा लेके आना है। तो एक तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे आप, एडिट पे क्लिक करते ही एडिट डॉट पीएचपी नाम का एक बटन खुल जाना चाहिए, पेज खुल जाना चाहिए, क्लियर।
मैं इसको तो आप अगर देखें तो इसको खोल सकते हैं। तो ये एडिट का बन चुका है पेज। इसको मैं फिलहाल जो भी ऐड में लिखा हुआ है अभी ना वो डाल देता हूँ सारा का सारा एडिट के अंदर, और पीएचपी वाला पार्ट उसे हटा देता हूँ, ऐसा ना हो एग्जीक्यूट करने लग जाए कुछ भी। लगभग वैसे ही बनेगा बटन वो पेज। तो ऐड की जगह एडिट कर देंगे क्योंकि हम एडिट की बात कर रहे हैं। और क्या होगा, जहां पे मैंने वैल्यू लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट योर डेटा, मैं लिख दूंगा अपडेट, राइट। तो आप एक बार अगर यहाँ चेक करें, एडिट की जगह एडिट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आ गया फिर से, पर इसमें वैल्यू भरी हुई आनी चाहिए। वो कैसे, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पहले तो वो इस पेज पे जाए और साथ में बताए किस पेज की बात हो रही है। वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आ जाओ, फिर से एक बार डिटेल्स पेज में जाओ, जो एडिट है एडिट के साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा लैग कर रही है। टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है अभी, एडिट के आगे कर्सर है ना वहीं पे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो एडिट बटन है इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जब उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो कहीं जाना चाहिए पेज पे। वो कौन सा पेज था, एडिट वाला पेज। एडिट वाला पेज जाना चाहिए और साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ये बताए कि मैं किस आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो किस तरीके से जाएगी वो एक अलग बात है। तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ये बताओ मुझे कि जब मैं इस एडिट पे, जैसे कोई भी लिंक होता है, आप देखते हो ना कोई भी लिंक होता है, तो लिंक पे जब हम लेके जाते हैं माउस तो हमको यहाँ नीचे दिखाता भी है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बॉटम पे, बॉटम में दिखाता है ना। अभी इसमें लिंक नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर कोई लिंक होगा तो दिखाएगा ना लेफ्ट साइड में कि कौन सा लिंक है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, की बॉडी के अंदर ऐसे हम एक HREF लिंक बना देते हैं, ये HREF और कुछ ऐसा कुछ करते हैं, डिटेल्स डॉट php। अब गूगल पे जब मैं लेके गया तो नीचे आपको दिख रहा है ना google.com, देखो बॉटम लेफ्ट में दिख रहा है। ऐसे ही आपको एडिट पे कुछ करना है। आप मुझे बताओ कि एडिट पे मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा क्या करूं कि उस पे लिंक आ जाए, बटन पे लिंक करना है आपको। href डालूं, एट्रीब्यूट href यूज कर सकते हैं आप। बटन का कैसे बनाना है आपको ये देखना है। इनपुट के अंदर href डालूं या href के अंदर इनपुट का बटन डालूं, क्या करना चाहिए। बटन के अंदर डालूं, अच्छा तो कहाँ पे लिखूं। जब इनपुट खत्म हो गया ये वाला, देखो ये सेलेक्ट किया है जो, जब ये खत्म हो गया, या एडिट वाले पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली, जब ये वाला पार्ट खत्म हो गया उसके बाद, या अंदर कहीं, ये ऐसे वैल्यू इक्वल टू एडिट लिख दिया उसके बाद, उसके अंदर डालना चाहिए। चलो एडिट के बाद लिख के देखते हैं। तो href टैग है वो डायरेक्ट उठा के डाल दिया मैंने, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ये तो सही नहीं आ रहा है ना। कुछ और करना चाहिए इसका मतलब, कैसे करेंगे।
सर हाइपर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। बता सकता है कोई कुछ? चेंज करके देखते हैं, ठीक है। जो ये HREF वाला पार्ट है, HREF वाले पार्ट को, ये पूरा एंकर टैग को उठा के पहले बाहर रखते हैं। ठीक है, ये लिंक है हमारे पास। अब इसके अंदर डालते हैं ये जो वाला, जो हमारा बटन है। TD बाहर रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। TD के अंदर ही आएगा ये पूरा। और ये A वाला टैग जहाँ पे आप बंद कर रहे हैं, एक्चुअली गूगल वाला पार्ट हटा देते हैं। और जब ये बटन खत्म हुआ तो यहाँ पे A लिखते हैं, ठीक है। और इनपुट टाइप रखें या ना रखें वो देखते हैं अभी। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ये कुछ आया है एडिट, ठीक है, देखा आपने? ये लैग हुआ। जैसे अभी दिख रहा है एडिट पे माउस है, नीचे लेफ्ट साइड में google.com का लिंक दिख रहा है, क्लिक किया तो पहुंच गया ना। तो अब इसका मतलब अगर हम google.com की जगह दूसरा वाला पेज जो हमारा है एडिट वाला, अगर उसको भी डालें तो भी वहां पे भी चला जाएगा। और इसमें टाइप बटन वगैरह डालने की जरूरत, हमने क्या लिखा है, एडिट लिखा है ना, वैल्यू एडिट लिखी है और टाइप बटन लिखा हुआ है। तो google.com की जरूरत नहीं है अब आपको क्या करना है, अब आप साथ में जो हमारा वाला पेज है, हमारे वाले पेज का नाम क्या है, edit.php, ये भी डाल सकते हैं। तो एडिट पे पहुंचा देगा हमें। एक बार देखते हैं पेज को, इसको रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करें। देखो आपको नीचे लेफ्ट साइड में लिंक भी दिख रहा है अब कि एडिट पे जाएगा, है ना। क्लिक किया, चला गया, देखो। अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, डेटा लेके आना, इसमें भरना। पर अभी पूरी नहीं हुई बात। अभी बात ये रह गई है कि डेटा तो आ गया, सॉरी पेज तो आ गया, बट ये कैसे पता कि किस आईडी की बात हो रही है, किस आईडी की बात हो रही है, कैसे पता चलेगा? आप पेज देखो ना, आपके पास 3 रोज हैं, एक सेकेंड, 3 रोज है आपके पास, ठीक है। सबकी आईडी डिफरेंट है। तो अभी जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो देखो इसने जो खोला, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो
फिर इसने कुछ खोला, तो ये कहाँ पता चला कि फर्स्ट से खुला या सेकंड से खुला या थर्ड से खुला? तो एडिट तो वही होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना अपनी मर्जी से कोई भी उठा के एडिट कर देगा। वो तो हम बताएंगे एज अ प्रोग्रामर, हमारा काम है उसको बताना कि इस एलिमेंट को एडिट करो, इस पर्टिकुलर रो को एडिट करना है। तो जैसे मेरे फर्स्ट है, नाम लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट सिटी लिखा हुआ है, और फिर एडिट करना है। अगर मुझे सिटी एडिट करनी है तो एडिट के बटन पे जाते ही पूरा फॉर्म फिल आना चाहिए पहले तो, और फिर मैं उसको चेंज करूंगा। ऐसे ही होना चाहिए ना, ये कैसे होगा? आईडी सबकी यूनिक है, तो कैसे, आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम ऐसा जो हमें पता चल जाए कि अच्छा आईडी, ये वाली रो की बात हो रही है तो ये वाली आईडी उठा लेंगे। जो आपको जरूरत है वो एक्चुअली हम कर चुके हैं पहले, जिस चीज की आपको जरूरत है वो हम पहले कर चुके हैं। वो आपकी बात सही है, बट वो डिटेल किस रो की लेके आएगा? तो जब आप एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कहाँ पता चल रहा है कि कौन से यूजर नेम की बात हो रही है? पता चल रहा है अभी? अभी तो नहीं पता चल रहा ना। वो तो हर केस में आप चाहे किसी भी एडिट पे क्लिक कर लोगे, वो एक ही जगह जा रहा है, edit.php पे, और उसमें कॉमन कोड लिखा हुआ है, उसमें हम आईडी के हिसाब से कुछ बता ही नहीं रहे हैं अब तक। ऐसा क्या करें कि उसको ऐसा लगे ऐसा करना है? हाँ, रो वाला किया था। हम्म, वो तो बाद में लेके आने वाली बात है ना। यहाँ पे बताओ, यहाँ एडिट में क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा? ये एडिट में क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन जा सकती है कि इस वाली आईडी की बात हो रही है? सर एडिट के जो नेम है उसको यूनिक आईडी दे देंगे। सर जो एडिट का नेम है उसको एक यूनिक आईडी दे देंगे, जो यूनिक प्राइमरी की सेट कर रखी है। देखते रहो ध्यान से। edit.php दिख रहा है आपको? मतलब edit.php माउस दिख रहा है लिंक में, जहाँ पे मैंने href बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं क्वेश्चन मार्क यानी क्वेरी स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है, और आईडी इक्वल टू मैं लिखूं ऐसा, रो आईडी, कैसा रहेगा? अब क्या होगा इस टाइम पे? आईडी किसकी आएगी? इस पर्टिकुलर रो की जिसकी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट? अब पेज पे जाते हैं वापस, जो एडिट वाला पेज है। अब देखो मैं एडिट पे माउस लेके जा रहा हूँ, अच्छा कुछ गड़बड़ है अभी। आईडी इक्वल टू, प्रॉपर नहीं आया, href। अच्छा, इसमें मैंने PHP का यूज नहीं किया अभी तक, PHP का यूज करना है, तो मैं यहाँ ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज, और जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, देख रहे हो आप क्या क्या कर रहा हूँ मैं? edit.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, ये तो जो था वही है, उसके अलावा मैं चीजें डाल रहा हूँ उसमें। इसको ऐसा करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, जो PHP वाला पार्ट है बस वो हमें चेंज करना है, बाकी तो चीजें ठीक है। रिफ्रेश करते हैं फिर से, आईडी इक्वल टू, अभी आईडी आई नहीं है इसमें, मैंने कहीं छोड़ा है कुछ? अब ठीक है, देखो दिख रहा है आपको आईडी इक्वल टू 1 नीचे? अब देखो दूसरे पे लेके जा रहा हूँ,
चेंज हुआ? चेंज हो गया? अब 3 पे लेके जा रहा हूं। अब जितनी रोज होंगी ऐसी ऐसे बदलता रहेगा। जैसे एक काम करते हैं, add.php यूजर नेम, नाम बताओ अपना, डबल ए आस्था ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये ऐड कर दिया, ठीक है हमने। देहरादून, सबमिट डेटा, ये डेटा चला गया। आपका नाम बताओ? आयुष, अच्छा डबल ए। ठीक है, चला गया एक बार और। अब यूजर डिटेल्स देख लो फिर से, चेंज हो गई और अपने आप उसने हमें 5 रोज दिखा दी। अब किसी और एडिट पे लेके जाओ, देखो आईडी बदल गई। ऐसे एक और लेके जाओ, आईडी बदल गई। तो अब क्या हो गया, जब आप आईडी पे क्लिक करेंगे, सॉरी एडिट पे क्लिक करेंगे, तो अब क्या होगा, देखो ऊपर यूआरएल देखो। अब क्या पता चल रहा है किस आईडी को एडिट करना है, पहली वाली को। तो जब आप एडिट पेज में जाएंगे तो एडिट पेज में आप अब ये फाइंड आउट कर लेंगे ना कौन सी आईडी की बात हो रही है। फिर पीएचपी क्वेरी चलाएंगे, अब जैसे आपने प्रीवियस में चलाई थी अभी रिजल्ट फेच करने के लिए। अब आपकी कंडीशन भी लगेगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी नाम है, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। उसके बेसिस पे कुछ आएगा, यू विल फेच दैट डेटा और उसको फॉर्म में भर देंगे आप। फॉर्म में कैसे भरते हैं डेटा, फॉर्म में फिल कैसे करेंगे डेटा को, जैसे सॉरी फॉर्म में कैसे भरेंगे डेटा को आप, जैसे फॉर्म यहाँ पे है ऊपर कहीं, कहाँ था वो फॉर्म हमारा, डिटेल्स वाला फॉर्म है, ऐड वाले पे जाते हैं। जैसे प्लेस होल्डर लिखा हुआ है ना हमने, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं वैल्यू इक्वल टू यूजर नेम, या कुछ चीजें पहले से फिल कर दूं, ठीक है, तो ये अंदर फॉर्म के भरा हुआ आ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि नहीं समझ रहे? अब देखो आ गया ना। इसका मतलब इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, डेटा फेच करो, फॉर्म ओपन करो और वैल्यू इक्वल टू, वो भी जो डायनेमिक वैल्यू है वो उसमें फिल कर दो। तो सारी वैल्यू जब फिल कर लेंगे, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे फिल कर लिया और यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर लिया, तो ऐड की बटन पे अगर मान लो मैं ये कर लूँ तो तब नहीं जाएगा डेटा सबमिट होने के लिए, तब नहीं उसको एडिट करेगा वो। अगर मैं ऐड के पेज से करूंगा ये काम तब नहीं एडिट करेगा डेटा को, डेटा सेट से तो है लिंक ना, तभी तो इंसर्ट तभी तो हो रहा है डेटाबेस में। अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू डाल दूं सारी की सारी, जैसे मैंने पहले डाली हुई है, सेम वैल्यू डाल दूं और एक छोटी सी चीज चेंज कर दूं, तो वो एडिट नहीं करेगा क्या? ऐड वाला पेज, add.php वाला पेज एडिट नहीं करेगा डेटा को? क्या फर्क है, हमने एडिट वाला पेज भी वैसे ही बनाया है, और देखो एडिट वाला भी अगर मैं ओपन करूं तो एडिट वाला पेज भी वैसे ही है, ऐड वाला भी वैसे ही है। तो मैं क्या करने वाला हूं ऐसा एडिट में जो एडिट करेगा और इंसर्ट नहीं करेगा? क्या डिफरेंस होगा दोनों में? वही तो कह रहा हूं मैं, एक तो पहले से ऐड है ही, ठीक है, आपने सेम वैल्यूज ऐड कर ली, खुद ही देखा डेटाबेस में, उठा के लाए, ऐड फॉर्म में भर दिया उन चीजों को, फिर ऐड पे क्लिक किया, तो वो अपडेट नहीं कर देगा पुरानी वाली वैल्यू? क्यों नहीं करेगा अपडेट? सर जो प्राइमरी की है वो सर नहीं मिल जाएगी उसको। पता चल रहा है अपडेट वाले को कैसे पता चल रहा है कि आईडी यूनिक नहीं है, या मतलब आईडी यूनिक है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, कैसे डिस्टिंग्विश हो रहा है? एक छोटी सी बात है, बस उसका जवाब सुनना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। ऐड और अपडेट में क्या डिफरेंस हुआ? नहीं तो अभी ये पीछे जो पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखूंगा उसमें क्या डिफरेंस होगा?
कुछ डिफरेंस होगा ना। वो तो ठीक है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, लेकिन पीएचपी में मैं क्या चेंज, कहाँ पे चेंज होगा ऐसा, मैं आपसे एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ। होना तो यही है, ऐड में तो यही होगा कि नया ऐड होगा, चाहे आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करो चाहे कुछ भी करो। अपडेट में आप डुप्लीकेट करो या नई करो या पुरानी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपडेट ही करेगा। पर जो हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट है उसमें कहाँ पे बदलाव होगा ऐसा? सर क्वेरी आ जाएगी अपडेट वाली उसकी इंसर्ट की जगह। एसक्यूएल क्वेरी में नहीं बदलाव होगा, एसक्यूएल क्वेरी बदलोगे ना, क्वेरी तो बदलनी पड़ेगी तभी तो होगा काम। आप क्या सोच रहे हो कि इंसर्ट वाली लगा देंगे, अपडेट वाली लगाएंगे ना, तभी तो अपडेट करेगा वो, नहीं तो क्या ही डिफरेंस हो, फिर तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? नहीं तो हम add.php वाले को एग्जैक्ट नहीं छाप देते अगर ऐसा करना होता तो। बट add.php वाले में क्या पार्ट है, add.php वाले को अगर आप देखें तो उसमें कमांड है इंसर्ट वाली, ये देखो यहाँ पे। एडिट वाले में आप क्या करेंगे, अपडेट वाली कमांड करेंगे, और किस बेसिस पे अपडेट करेंगे, जो आईडी आपके पास आएगी। आ रही बात समझ में? सो योर फर्स्ट टास्क इज टू गेट द आईडी, जो कि मैंने आपको बता दी कैसे आनी है। ठीक है, आप फॉर्म में आप कौन सा जब आप एडिट कर रहे हैं, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये डिटेल्स वाले पेज पे जाते हैं एक बार, मैं आपको एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैं ये एडिट पे गया सेकंड वाले पे, ठीक है, क्लिक किया, इसके बाद क्या करूंगा मैं, कैसे आईडी कैसे निकालूंगा, इससे यूआरएल से कैसे निकलेगी आईडी? आईडी मैंने भेज तो दी यूआरएल में, निकालूंगा कैसे? डिस्कस कर चुके हैं मैं सारा पहले। फेच फंक्शन क्यों लगेगा? फेच वाला तो हम डेटाबेस से लेके आ रहे थे ना, यूआरएल से कैसे निकालते हैं डेटा, कर तो चुके हैं पहले। सर गेट फॉर्म मेथड में मेथड है गेट एंड पोस्ट, ये किससे निकलेगा, ये गेट से निकलेगा। कोई भी चीज अगर गेट से निकालनी हो, कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, देखो मैंने तो सिर्फ यूआरएल में लिखा ना उसको, पर हम निकाल सकते हैं यूआरएल से ही, मतलब यूआरएल में जो है वो गेट से निकलेगा, बस इतनी सी बात है। तो आप क्या यूज करेंगे, गेट, जो फंक्शन जो आपके पास था गेट वेरिएबल, और उसमें क्या वैल्यू पास करेंगे, आईडी, वो आपको देगा इस केस में 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ऊपर देखो। ठीक है, फिर आप एक क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, जो भी आईडी आई, क्योंकि आईडी आपको डायनेमिक बनानी है, ऐसा नहीं कि हर बार 2 चलेगी, उससे डेटा आ जाएगा। तो एक रो देगा आपको, एक ही रो देगा, एक रो देने में उससे आप वैल्यू निकाल लोगे, जैसे अभी हमने डिटेल्स में निकाली थी वैल्यूज। देखो इधर, फिर आप ये वाली लूप चला देंगे, आप ये वाली लूप चला दोगे। लूप चलाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास एक ही रो होगी ऐसी जिसकी आईडी वो पर्टिकुलर आईडी होगी। ठीक है, तो आप वेरिएबल में वैल्यू सेव कर लोगे, और उन वैल्यू को क्या करोगे, फॉर्म में चिपका दोगे, वैल्यू इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस, फॉर्म में वैल्यू आ जाएंगी। अब सिर्फ एक ही काम रह गया, प्रोसेस समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? सारी डिटेल आपके पास आ गई फॉर्म के अंदर। अब जहां पे हमने ऐड में ये क्वेरी चलाई थी इंसर्ट वाली, आपको यहाँ पे अपडेट वाली चलानी है। आ गई बात समझ में? तो कर लोगे ये काम, ये नेक्स्ट क्लास तक के लिए होमवर्क है आपका। ठीक है, एक प्रीवियस क्लास वाला जो क्वेश्चन था वो करना है आपको, दूसरा एडिट वाला मैंने आपको काफी बता दिया, आपको एडिट करना है आप चीजों को। फॉर्म भरोगे, फॉर्म में डेटा फिल करोगे, उसको ऐड करोगे डेटाबेस में, डिटेल्स चेक करोगे कि सही आ रही है प्रॉपर कि नहीं आ रही है, एडिट और डिलीट का बटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर एडिट पे क्लिक करोगे और देखोगे वो पर्टिकुलर रो अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इतना काम है आपका। डिलीट का काम बहुत ही आसान है। ठीक है, डिलीट का काम बहुत ज्यादा आसान है, डिलीट में बस डिलीट पे क्लिक करना होता है, और आपको पता ही है डिलीट की क्वेरी क्या है, एसक्यूएल की वही क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी होती है, वो डिलीट कर देता है। बट जनरली जब हम काम करते हैं इंडस्ट्री में, कभी भी काम होता है हम डिलीट नहीं करते हैं डेटाबेस से,
नहीं, रिमूव एंड डिलीट इज सेम थिंग, बट वी डोंट डिलीट द डेटा. सपोज आप अभी आपका फेसबुक में अकाउंट है, यू आर डिलीटिंग समथिंग, तो आपको क्या लगता है कि वहां फेसबुक के सर्वर से वो डिलीट हो रहा होगा तुरंत? ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली देयर इज अ कॉलम. जब मैं काम करता था तो हमने इस तरीके से देखा था, मे बी अदर इंडस्ट्री में कुछ अलग तरीके से फॉलो हो रहा हो, बट एक जनरल रूल होता है कि आपको डिलीट नहीं करना होता है कुछ भी. कई बार क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं, जैसे आप किसी के लिए काम कर रहे हो एंड उन्होंने गलती से कुछ डिलीट कर दिया, वो कहेंगे अरे हमसे गलती से डिलीट हो गया, प्लीज बैकअप है क्या आपके पास? तो व्हाट डज इट मीन? बैकअप क्या मतलब है? एक्चुअली एक कॉलम हम ऐसा बना देते हैं जिसमें हम ये रख सकते हैं कि इज डिलीटेड या डिलीटेड, ट्रू एंड फॉल्स. वो सिर्फ ये बताएगा डिलीटेड ट्रू, तो यूजर को तो ये लगेगा कि डिलीट हो गया, क्योंकि हम ट्रू कंडीशन से चेक करवा रहे हैं. लेकिन बैकएंड में एज अ प्रोग्रामर आपको पता है कि डिलीट नहीं किया, ट्रू फॉल्स ही किया है बस. जब आपको आप क्लिक करते हैं डिलीट दिस, आपने कोई कमेंट किया, कुछ भी किया, आपने बोला डिलीट कर दो, वो बोला आर यू श्योर? आपने कहा हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आपसे आर यू श्योर बोल रहा है, लेकिन पीछे है कुछ, अभी खत्म नहीं हुआ है वो. आप हर जगह यही देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी चीजें आप डिलीट करते हो, कहते हैं कि सर्वर से इतने दिन में डिलीट हो जाएगा. ऐसा भी होता है, जैसे आप अगर आप गूगल, मेरे ख्याल से गूगल का भी ड्राइव का भी ऐसा कुछ है, ठीक है, आप डिलीट तो करते हैं वो ट्रैश में, लेकिन वो कुछ टाइम बाद रहता है वहां तक. और मतलब डेटा प्रोटेक्शन लॉज पे भी डिपेंड करता है. आपने यूरोप वगैरह का सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन लॉज मतलब काफी जबरदस्त है, ठीक है. तो हो सकता है वहां पे आपने बोला कि अब हमारा ये डेटा यूज नहीं करना है, तो नहीं हो रहा होगा शायद से, बट यहाँ का कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि इंडियन लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है इस मामले में. ठीक है, अगर आपने बोला कि यूज नहीं करना है, हाँ ठीक है कोई नहीं, कॉल आ रहे होंगे आपको इधर उधर से. देखते हो आप कितना डेटा लीक तो होते हैं ना. अगर आपको कोई कई बार कॉल सेंटर से पता नहीं कोई क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल कर रहा है, कोई किसी के लिए कॉल कर रहा है, करते हैं कॉल, आप पूछो उनसे कहाँ से आपके पास हमारा डेटा आया, तो वो ये थोड़ा ना बताएंगे कहाँ से आया, बट उनके पास आया तो है ना कहीं से. या जितनी आपको इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में मिलती है, आपको मैसेज आते रहते होंगे, उनके पास कहाँ से आपको ये डिटेल्स जाती है, या पर्टिकुलरली कैसे उनको पता चलता है कि आप इस चीज़ को लाइक करते हैं तो ये चाहिए. तो डेटा तो सबके पास है ही, डेटा हथियार है मतलब अभी, ठीक है. तो ये बात हम डिलीट से रिलेटेड कर रहे थे. कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वाइंड अप करते हैं आज का, है ना. बच्चों आप जो ऑनलाइन बैठे हैं, कोई पूछना चाहते हैं कुछ? बैठे भी हैं कुछ कि नहीं बैठे हैं? बैठे तो हैं कुछ बच्चे, गुड. बच्चों एनी क्वेश्चन? If no question, then thank you so much. We'll wind up for the day.